It says that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across it. Could you please switch off your mics? Okay, is directly proportional to potential difference across it, provided all other physical conditions are kept constant. Now, what it means, और मैंने यहाँ पर आपको specify किया है that we have to mention current in the first place. आप देख सकते हो पहले मैंने current को specify किया, and afterwards, once I have mentioned current, then I have mentioned potential difference afterwards. What's the reason behind that? आप लोगों ने कभी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया होगा, but you need to be very clear about one thing, that if you write potential difference in the first place, it means that potential difference is dependent on current. It's a very simple thing to understand that current is basically the speed of a charge, rate of flow of charge, that how much charge is flowing through a point in a circuit in 1 second. Now, that means that we are talking about the speed of charge. और speed of charge जो होती है वो obvious सी बात है कि speed increase करने के लिए you need to supply with more energy, whereas energy in this case is potential difference. So that means that more the energy we are supplying to charge, the more work it can do, and more work it can do, it means that the higher its speed can be. So that means that current can be increased when we supply it with more energy, so more work can be done. It means that current is dependent on potential difference, because potential difference is work done on 1 coulomb of charge between 2 points, as I have told you in the previous section, in the previous lesson. तो इसका मतलब है potential difference work done है, और वो work done करके charge move करता है. So if I want to increase the speed, if I want to increase the current, the magnitude of current, I need to supply it with more potential difference. So इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंडेंट नहीं है. If you will turn the statement and you'll write it this way, that potential difference across a conductor is directly proportional to current flowing through it, it means that you are saying that potential difference is dependent on current. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप अपनी कार की स्पीड इंक्रीज कर रहे हो और आपके फ्यूल टैंक में फ्यूल ज्यादा होने लग जाए, बल्कि इसका उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है. The higher the speed of your car, the more fuel is used. So that means fuel कम होने लग जाता है, fuel use हो रहा होता है. इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना जो कि बच्चे नॉर्मली नहीं रखते हैं. जी हादी, Hari, you want to ask something? Yes sir, मेरा क्वेश्चन था कि सर ये जो वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों से एक दूसरे का सर अगर ऑपोजिट है, तो सर क्या ये जो ईएमएफ है इसका भी कोई रिलेशन है करंट से? बेटे ईएमएफ का रिलेशन करंट से इस तरह से होता है कि आप खुद सोचें, आपकी कार में कितना फ्यूल है इन टोटल, वो डिसाइड करेगा कि आप किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर भी सकते हैं या नहीं. अब ईएमएफ क्या है? टोटल फ्यूल सप्लाइड टू योर कार. उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द पार्ट ऑफ फ्यूल यूज्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स.
अब सपोज करो कि आप चाहते हैं कि एक सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपको मिले, यानी कि आप एक सर्टेन स्पीड अचीव कर सके, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर 2 liters of fuel. That means between those 2 points, to achieve that certain magnitude of speed, that is current in this case, you need 2 liters of fuel. But at the same time, आपके कार में जो total fuel available है वो 1.5 लीटर है. तो क्या आप वो डिस्टेंस कवर कर पाओगे, या क्या वो आपको अचीव कर पाएंगे वो स्पीड जिससे आप चलना चाहते हैं? तो यस, इन वन वे वी कैन से कि हमारे पास ईएमएफ होगा, उसने आगे कन्वर्ट होना है वर्क डन करते हुए नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में. तो इसका मतलब है कि ईएमएफ अवेलेबल हो तो फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर सकते हैं और फिर करंट की बात कर सकते हैं. अगर ईएमएफ अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसकी बात ही नहीं कर सकते. So basically, EMF is the total bank of energy supplied to 1 coulomb of charge to be driven once completely around the circuit. अब अगर उसके पास जो टोटल एनर्जी बैंक है, जो कि 1 कूलम चार्ज को दिया गया ताकि वो एक कंप्लीट सर्किट कर सके, वो है हमारे पास 10 जूल, यानी 10 वोल्ट्स. अब बीच में एक ऐसे 2 पॉइंट्स आ गए जिसमें जिस स्पीड पे वो जाना चाहता है वहां पे वो खर्चेगा 4 जूल्स, यानी 4 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो तब ये पॉसिबल है कि वो स्पीड को अचीव करके उन 2 पॉइंट्स के दरमियान से मूव कर जाए. लेकिन अगर हम कहते हैं कि मैंने टोटल बैंक ऑफ एनर्जी चार्ज को दिया है 1, लेट्स से 3 जूल्स, दैट मींस कि उसके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है 1 कूलम चार्ज के पास, वो 3 वोल्ट्स के इक्विवेलेंट पोटेंशियल ईएमएफ है. तो अब अगर उसे 2 पॉइंट से गुजरने के लिए एक सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड पर ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी 4 जूल्स की, यानी 4 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वो उन 2 पॉइंट से पास ही नहीं कर सकता. इसलिए अगर हम एक बात सुनने बेटे, अगर हम एक ऐसे सर्किट में जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा हो, यानी उसको ज्यादा वर्क डन चाहिए करंट को उसमें से फ्लो करने के लिए, हम उसके अंदर एक स्मॉल पावर सप्लाई लगा देते हैं तो उसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर पाता, वो सर्किट स्विच ऑन ही नहीं होता. जी बेटे, अब आप पूछे जो बात कर रहे थे बेटे. सर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर, इसको थोड़ा सा बता दें, मैं थोड़ा भूल गया. बेटे पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted to non-electrical energy so that 1 coulomb charge can do work and can move between 2 points in a circuit. मैं इसको एक दफा फिर से elaborate कर देता हूं. EMF होता है non-electrical energy converted to electrical energy and handed over to 1 coulomb charge ताकि वो पूरे सर्किट का एक ट्रिप कर सके. Let's say कि मैंने एक 1 coulomb charge को एक सर्किट में 10 जूल्स की नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे दिया है ताकि वो एक कंप्लीट राउंड लगाए. तो इसका मतलब है कि हमारे पास ईएमएफ है 10 वोल्ट्स. अब इसकी मर्जी है वो ये 10 वोल्ट्स जहां मर्जी चाहे खर्च कर ले. अब उसके रास्ते में एक रेजिस्टर आ जाता है और वो उस रेजिस्टर से गुजरना चाहता है. वो रेजिस्टर एक लाइट फिलामेंट बल्ब है, वो उसको गुजरने नहीं दे रहा. अब 1 कूलम चार्ज के पास 10 जूल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल है. वो उस 10 जूल्स में से अ पार्ट ऑफ इट, फ्रैक्शन ऑफ इट वो खर्चेगा, यूज करेगा और वो मूव करके बल्ब से क्रॉस कर जाएगा. क्योंकि बल्ब उसे गुजरने नहीं दे रहा था तो उसने वर्क डन किया और उसने वो एनर्जी यूज की और बल्ब की दूसरी साइड पर आ गया. अब उसने जब बल्ब से एंटर होने लगा था तो उसके पास थे 10 जूल्स. जब वो बल्ब से बाहर निकला तो उसके पास बच गए 6 जूल्स. इसका मतलब है कि चार्ज के पास जो 4 जूल्स का डिफरेंस आया है वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल में ताकि वो वर्क डन करके उस बल्ब से गुजर सके. एंड इट मींस दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब इज 4 वोल्ट्स. क्योंकि जब वो बल्ब में एंटर होने लगा था it has 10 joules of electrical energy. When it left the bulb, it has 6 joules of electrical energy. So that means that when it is about to enter, its electric potential is 10 volts. When it left the bulb, its electric potential is 6 volts. The difference between the two electric potential is 10 minus 6 means 4 volts. This 4 volt means that 4 joules of electrical energy is converted to non-electrical energy to do work in order to pass through that bulb. Is it clear? कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बेटे क्लियर है? जी सर.
ओके, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अगर मैं इस बल्ब के अंदर पहले 4 जूल्स नॉन इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था, दैट मींस 1 कूलम चार्ज पे मैं 4 वोल्ट्स का वर्क डन कर रहा हूं, 4 जूल्स का वर्क डन कर रहा हूं। अब मैं इसी बल्ब के अक्रॉस 4 जूल्स के वर्क डन के बजाय 6 जूल्स का वर्क डन कर दूं, तो वही 1 कूलम चार्ज ज्यादा स्पीड पे चलेगा। In the same bulb, if I increase the work done from 4 joules to 6 joules. No sir, no sir. बेटे फिर से सुने इस स्टेटमेंट को। मैं 1 कूलम चार्ज को बल्ब से पास करवाने के लिए पहले 4 जूल्स का वर्क डन कर रहा हूं। अब 4 की बजाय आई एम डूइंग द वर्क ऑफ 6 जूल्स। Will there be any increase in the speed of this 1 coulomb charge? Yes, sir. आएगा। इसका मतलब है ऑफिशियली आना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सोचे कि नहीं आना चाहिए, ऑफिशियली ये इंक्रीज आना चाहिए। इसका मतलब है दैट इंक्रीजिंग potential difference across the same conductor, increasing potential difference across the same conductor will increase the magnitude of current flowing through that conductor. I'm repeating this part कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास उस कंडक्टर में से फ्लो करने वाला करंट भी इंक्रीज कर जाना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट द वेरी ओम्स लॉ स्टेटेड, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference across it, provided all other physical conditions are kept constant. Now this statement, again, it is very important statement जो यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूं, that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across it, provided all other physical conditions are kept constant. Now it's just like I'll give you an option. I'll hand over to you a small normal car, for example, Mehran, Cultus या कोई भी ऐसी गाड़ी में दे देता हूं. At the same time, I'll give you a hypercar, Lamborghini. आप लोग सोच रहे होंगे सर देख हैं, तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तरफ एक Mehran है, एक तरफ Lamborghini है। मैं कहता हूँ जाओ बेटे, जिस मर्जी गाड़ी से ज्यादा स्पीड पे निकल आए। आप किस गाड़ी के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा स्पीड से आप जा सकते हैं? यू विल अचीव हायर एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली हाइपर कार पे, लैम्बोर्गिनी पे जाएंगे आप। लेकिन मैं आपको जब लैम्बोर्गिनी देता हूं तो उसके आगे मैं एक वॉल बना देता हूं। अब फेयर कंपैरिजन तो तभी हो सकता है ना इन दोनों का, फेयर कंपैरिजन इन दोनों का तभी हो सकता है जब हम कहें कि हमारे पास एक मेहरान और एक लैम्बोर्गिनी, दोनों को सेम कंडीशंस दी गई थी, दोनों के आगे सेम रेजिस्टेंस रखा गया था। अब आप मेहरान को चलाएंगे तो वो स्लो जाएगी, लैम्बोर्गिनी को चलाएंगे वो तेज एक्सेलरेट करेगी, जल्दी एक्सेलरेट करेगी। लेकिन अगर मैं आपको मेहरान देता हूं वो स्लो जाती है, और जब मैं आपको लैम्बोर्गिनी देता हूं तो उसके आगे मैंने वॉल बनाई हुई है, तो अब क्या होगा? आप आगे तो नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि अगर मुझे फेयर कंपैरिजन करना था तो मुझे दोनों केसेस में रेजिस्टेंस और कंडीशन सेम रखने चाहिए थे, तभी मुझे पता चलता है कि इट्स लैम्बोर्गिनी व्हिच विल अचीव फास्टर एक्सेलरेशन और इट्स मेहरान। तो इसका मतलब है दैट पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट सिर्फ तब तक डिपेंडेंट है जब हम कहें कि हमारी दूसरी फिजिकल कंडीशन यानी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये बात जो मैंने लिखी है, फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट, इट मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस व्हिच शुड बी केप्ट कांस्टेंट। अब इसके ऊपर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट दे रहा हूं दैट व्हाट दीस फिजिकल कंडीशंस आर मींस। अब मैं यहां से आपके लिए इस पॉइंट पर ये जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं यहां पर, इसको मैं इस जगह पे एक्सप्लेन करने लगा हूं। फिजिकल कंडीशन
are temperature, light intensity, and strain. That is overall, we are talking about resistance. अगर मैं कहता हूं ना कि इन सब फिजिकल कंडीशंस को हमने कांस्टेंट रखा है, तो इट मींस मैं एक्चुअली में बात कर रहा हूं कि मैंने टेम्परेचर को, लाइट इंटेंसिटी को, स्ट्रेन को कांस्टेंट रखा है। और जब हम इन सब चीजों को कांस्टेंट रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज फीचर्स व्हिच मींस रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली ओम्स लॉ के अंदर दैट प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट, एक्चुअली में ओम्स लॉ जो है वो ये स्टेटमेंट देता था जो मैंने अभी आपके सामने लिख दी है, that provided all other physical conditions are kept constant. जी हादी सर एक मेरी रिक्वेस्ट है सर कि हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में सर अगर प्लीज जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं वो प्लीज सर एक बार लिख के बता देंगे। कौन से फॉर्मूले? जो अगर हमने जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूलाज किए हैं। बेटे मैं आपको ये चैप्टर ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आई एम assuming that you haven't studied this chapter ever. एक एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा जाएगा। I'll share my notes as well on the Google Classroom. Don't worry about that. ओके सर। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। एक एक फॉर्मूला मैं आपको ये सोच के तो चल ही नहीं रहा कि आपने ये चैप्टर किया। मैं इस तरह सोच के चल रहा होता तो I would be explaining in this much detail. फिर तो मैं क्विक रिव्यू देता, 2 दिन में खत्म करवा देता। परेशान नहीं होना है। आपने इस चैप्टर को लगता है काफी टेंशन लिया हुआ आप सबने, ठीक है? अब टेंशन नहीं लेनी, ये चैप्टर बिल्कुल नए सिरे से हो रहा है। आप समझ लें कि मैं ये मान ही नहीं रहा आपने पहले ये चैप्टर कभी किया। अच्छा, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसके ग्राफ। जब हम कहते हैं कि ये सारी बातें हो रही हैं तो नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द ग्राफ्स ऑफ दिस। Do you guys are aware of the fact that whenever we talk about this, that we have to present a law on a graph? अगर मुझे किसी लॉ को ग्राफ पे प्रेजेंट करना हो तो क्या आप लोगों को पता है कि उसमें ग्राफिकल केसेस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड कम ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड कम ऑन वाई एक्सिस? आर यू अवेयर ऑफ दिस टर्म डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? पता है बेटे आप लोगों को इस टर्म का कि व्हाट आर डिपेंडेंट एंड व्हाट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? नहीं सर। अच्छा बेटे मुझे बताएं कि करंट पोटेंशियल यानी कि आप लोगों को ग्राफ्स अच्छी तरह नहीं आते हैं, if I'm not wrong. जी समझ नहीं आ रही बेटे? ऊंची बोले। जी सर जी। अच्छा, मैं आपके लिए एक काम करूंगा। I have recorded a couple of lessons based on graphs and the understanding of graph. I'm going to share those lessons इसी तरह in your Google Classroom. Each lesson is of around 1 hour. आपने ना वो सारे लेसन जो है ना वो मैं आज आपको या कल आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आपने ग्राफ्स के वो 2 लेसन जरूर देखने हैं क्योंकि फिजिक्स ग्राफ्स के बगैर कुछ भी नहीं होती। मैंने उसमें मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स के साथ कोहेरेंट रख के ग्राफ्स एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ इसके एक्स एक्सिस के ऊपर independent variable. When we say that on x-axis we should mention independent variable, तो इसका मतलब वो variable जो दूसरे के change होने से change नहीं होता।
जैसे इफ आई टॉक अबाउट एज एंड हाइट, हाइट एज पे डिपेंडेंट है या एज हाइट पे डिपेंडेंट है? हाइट एज पे डिपेंडेंट। वेरी गुड, क्योंकि अगर एक इंसान मर जाएगा तो उसकी हाइट तो इंक्रीज नहीं हो सकती, इसका मतलब एज इंक्रीज होगी तो हाइट में इंक्रीज होगा। बट जरूरी नहीं है कि एज में हाइट में कोई चेंज आए तो एज में चेंज ना आए। हमारी हाइट एक टाइम के बाद रुक जाती है लेकिन एज फिर भी इंडिपेंडेंटली इंक्रीज होती रहती है। सो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट डिपेंडेंट है या करंट पे पोटेंशियल डिफरेंस? यानी कि करंट है स्पीड ऑफ चार्ज और स्पीड ऑफ चार्ज डिपेंडेंट है एनर्जी पे। तो इसका मतलब है कि अगर हम एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ चार्ज ज्यादा होगी। इसका मतलब करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। तो ऑफिशियली अगर हम ओहम्स लॉ को एक्स एक्सिस पे बताने लगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में शो करने लगे, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस शुड कम ऑन एक्स एक्सिस व्हेयरएज करंट should come on y axis। तो हमने इसको x axis पे रख दिया और इसको y axis पे रख दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हम यहां से इसका ग्राफ बनाने लगे। अब एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है। whenever you are presenting any law, no matter whether that law is related to physics or any other social sciences, natural sciences or social sciences, आप कहीं भी law की बात कर लेते हैं and the law involves direct or inverse proportion, whenever you will present a law on a graphical form, in a graphical form, it should always be a straight line passing through origin. That's the only way that the laws are true, otherwise वो law true नहीं होगा, वो गलत होगा। तो हमारे पास क्योंकि बात हो रही है लॉ की, that is Ohm's law, तो ये किस तरफ को होना चाहिए? अब it should be a straight line passing through origin। तो ये हमारे पास बन गई है straight line passing through origin, ठीक है। इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ किस चीज की बात करता है? ओम्स लॉ कहता है that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across it. It means that Ohm's law is saying that V is directly proportional to I, provided all other physical conditions, that is temperature, light intensity and strain, which means that we are talking about resistance, provided resistance of a conductor is kept constant. So if I want to write this law from variation in equation format, I need to introduce a constant over here, और हमारे पास यहां पर जो constant है वो क्या है? Resistance। तो अगर मैं इसको वेरिएशन फॉर्मेट से लिखूंगा तो वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, और इस जगह पे कांस्टेंट हमारे पास बेसिकली है रेजिस्टेंस। तो आई एम राइटिंग रेजिस्टेंस ओवर हियर। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। दैट मींस दैट फाइनली अगर मैं बात करूं यहां पर तो हमारे पास ओहम्स लॉ इज दिस। अगर हम फाइनली ओहम्स लॉ लिखें, इट्स गोना बी दैट V इज इक्वल टू I R। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास ओम्स लॉ था। अब मुझे जब इसको प्लॉट करना है, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। व्हेन वी आर सेइंग दैट इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट मींस यहां पर और यहां पर इट शुड बी जीरो। नाउ टेल मी, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट डू यू थिंक? यहां पर अगर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के रेफरेंस से बात करूं तो आपके ख्याल में इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? किस फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करना चाहिए? जल्दी से बताएं। Which physical quantity should be presented by the gradient of this graph? अच्छा, अब मैं आपको ग्राफ्स के अंदर ये चीज भी बता देता हूं। बेटे
ये आप लोगों ने याद किया हुआ है। अब याद की हुई चीजों का रिजल्ट यही होता है जो अभी आप मुझे दे रहे हैं। मैं अब आपको एक easiest method बताने लगा हूं to determine that which physical quantity is represented as a gradient of any graph. The formula for the gradient is rise over run. Rise over run. ये फॉर्मूला है ग्रेडियंट का। अब मुझे बताएं यहां पर राइज में क्या लेबल हुआ है? राइज में क्या लेबल्ड है? आई। वाई एक्सिस पे आई लेबल था, जबकि रन में क्या लेबल्ड है? वी। अब आप लोगों ने फौरन से बोल दिया कि इसका जो ग्रेडियंट है वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप लोगों ने ये बात याद की हुई थी कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर वी आई ग्राफ का ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है, लेकिन वो वी आई ग्राफ है। द एक्चुअल ग्राफ इज आई वी ग्राफ। जब आप पेपर में देखेंगे बहुत से क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे तो इट्स एक्चुअली आई वी ग्राफ, नॉट वी आई ग्राफ। अब अगर मैं आई वी ग्राफ की बात करता हूं तो यहां से देखें हमारे पास v इज इक्वल टू आई आर है, तो आप मुझे बताएं r किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? इसका क्या मतलब है कि r हमारे पास किस वैल्यू के इक्विवेलेंट है? r इज इक्वल टू v ओवर r। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख देता हूं i ओवर v, तो इस जगह पे हमारे पास क्या बन जाएगा? then it will be 1 over r। Now these are those things जो मैथमेटिकली आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और आप लोग सिर्फ याद रखते हैं। बेटा ग्रेडियंट कभी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। The only thing you need to remember is the formula। अब अगर आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V over I, so that means that I over V means 1 over resistance। In this case जो कि मैंने आपके सामने अभी शो किया है, इसमें यहां पर I over V लिखा हुआ है। That means that the gradient of this graph is 1 over r। तो ये वो गलती है जो आप लोग सोचे समझे बगैर कर देते हैं। अब हम आते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब आई एम श्योर कि आपने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को भी इसी तरह ही किया होगा कि दैट रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। ऐसे ही है, यही याद रखा हुआ ना आप लोगों ने, दैट रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, जिसके 0 मार्क्स हैं अगर आपने पेपर में लिखा तो। ठीक है, आपको यहां पर रेजिस्टेंस के लिए डेफिनेशन आई एम गोइंग राइट। Are you guys aware of the fact that Ohm's law is actually the definition of resistance? कितने बच्चों को ये बात पता है? बेटे Ohm's law is actually the definition of resistance। अब मैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यहां पे लिखने लगा हूं। रेशियो of potential difference across a conductor to current flowing through it। ठीक है, अब आप देखें जो मैंने यहां पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी है और इसके SI यूनिट हमारे पास होते हैं ओहम्स। which is mentioned as this symbol। ठीक है, अब जो मैंने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें, इट्स द रेशियो इन द फर्स्ट प्लेस। लुक एट दिस स्टेटमेंट व्हिच आई एम मेकिंग ओवर हियर। बेटे किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी नाउ। गाइस डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा चले, आप इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैंने यहां पे लिखा है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर
to a current flowing through it. अगर हम इस रेफरेंस से लिख रहे हैं तो रेशियो क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां पे क्या लिखूं इस जगह पर? पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट फ्लोइंग. दिस विल बिकम अ फ्रैक्शन, अ रेशियो. तो बेटे ये रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है. तो अगर आप देखें तो ओहम्स लॉ क्या इसी के ऊपर ही बात नहीं कर रहा था? अगर हम ओहम्स लॉ को देखें तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है इट इज एक्चुअली डिफाइंड बाय ओहम्स लॉ. ये 2 मार्क्स की वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद करनी चाहिए. और जब मुझे बच्चे लिख के देते हैं ना हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ, बहुत ही अफसोस होता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि आप एक सिंपल तरीके से देख सकते थे, आपने उस डेफिनेशन को सिर्फ हिंड्रेंस लिख के अपने 2 मार्क्स लूज कर दिए. अब ये है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमारे पास. अब ये मैंने आपको लिख दी है. इसमें मुझे बताएं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हादी बताएं. हादी रेजिस्टेंस आ रही थी हेडफोन यूजर. ओहम है. जी ओहम है. हाँ ठीक है, ये कंफर्म करो. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. मैंने रेजिस्टेंस को जब एक्सप्लेन किया तो मैंने ऊपर ये बात बताई. अब हमारे पास यहां पर ग्राफ आ गया. अगर अब मैं ये ग्राफ जो मैंने ऊपर ओहम्स लॉ को आपको बना के दिया है, अगर मैं वी आई वी की जगह आई मेक अ ग्राफ ऑफ वी आई, तो फिर इसका ग्रेडियंट क्या होगा? देन द ग्रेडियंट इज व्हाट यू आर थिंकिंग. अच्छा, अब आप मुझे पहले एक बात बताएं कि आइंदा आप लोग ग्रेडियंट्स के रटे लगाएंगे या फिर इस तरीके से खुद से बनाने की कोशिश क्या करेंगे कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ग्रेडियंट? क्या मेथड आपने सीखा कि अगर आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ग्रेडियंट की बात करनी होगी? गाइस यू आर हियर, कैन यू हियर मी? बेटे आपकी आवाज बहुत आप लोग मुझे सुन सकते हैं? यस सर, यस सर. बेटे कोई बोल के बताएगा. आई थिंक दैट देयर वाज अ बिट अनस्टेबल. ठीक है ना, माइक बंद कर. इसलिए पूछ रहा हूं आप लोगों आवाज से. नहीं आ रही. सर थोड़ी कट रही है आवाज. आदि का माइक बंद करवा दें आपकी. मुझे फिर अच्छा, अब आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है, हल्की हल्की आ रही है सर. हादी को के माइक बंद कर दे, अजीब सी आवाज आ रही है उससे. मेरा माइक बंद है. ओके, मैं खुद बंद कर देता हूं सबके माइक्स. थैंक यू. अच्छा, नाउ मूविंग टू दिस पॉइंट. अगर अब मैं दोबारा से यही ग्राफ यहाँ पे बना देता हूं और इस वक्त आपके सामने एक और ग्राफ मैंने यहाँ पे शो कर रहा हूं. सो दिस इज अ ग्राफ. और अब मैं इसके ग्रेडियंट की आपसे बात करते हैं. व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ? V over I. V over I. So that means कि अगर अब हम इसका ग्रेडियंट बनाएंगे it's gonna be V over I. यहां पर हमारे पास ये, अब हमारे पास इसका ग्रेडियंट हो गया V over I. V over I. तो अब हम यहाँ पे ग्रेडियंट लिख देते हैं. ग्रेडियंट इज rise over run V over I. That means अब हम बात कर सकते हैं that its gradient is resistance. So this is how we are going to think कि कब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस है और कब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस नहीं है. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर. अभी तक हमने जिन भी कंडक्टर्स की बात की है वो थे सारे ohmic conductors. So I was talking over here about ohmic conductors. सर ये V over जी I बेटे बोले. V over I कैसे है? ओके बेटे अपना माइक म्यूट करें. चलिए मैंने कर दिया. अच्छा, अब देखिए ये V over I ऐसे है कि बेटे राइज में क्या लिखा हुआ है? V. रन में क्या लिखा हुआ है? I. तो मुझे बताएं कि हम जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम यही यूज करते हैं जो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूं. Gradient is equal to rise over run.
So if I'm saying कि gradient is equal to rise over run, तो rise के labels में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही clearly आपको नजर आ रहा होगा इस point पर V, और run में हमारे पास आ रहा है R. तो इसका मतलब है rise वाली जगह पे जब V लिखूंगा और run वाली जगह पे R लिखूंगा, I लिखूंगा, तो V over I का मतलब क्या होता है? According to the formula that we have just studied about resistance, it means that we are talking about resistance. Is that clear now? Okay. Yes. अब हम आते हैं एक टर्म पे, ohmic conductor. अभी तक मैंने आपके साथ जितने भी कंडक्टर और जो आपको दो कंडक्टर्स दैट ओबे ओम्स लॉ, अब हमने इसको ऐसे नहीं करना क्योंकि ये भी 2 मार्क्स की डेफिनेशन है. वी आर गोइंग टू राइट कंडक्टर्स, बेसिकली ओम्स लॉ ही पूरा लिखना है, इन विच करंट flowing through them is directly proportional to potential difference across them. इसका मतलब है कि मैंने एक्चुअली में ओम्स लॉ ही लिख दिया है, बट ये बात नहीं की कि रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट. द रेस्ट ऑफ द थिंग इज मैंने ओम्स लॉ ही लिख दिया. तो कंडक्टर जिनमें से करंट जो फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन्हें बोलते हैं ओमिक कंडक्टर. इन अदर वर्ड्स, आई एम जस्ट मेंशनिंग ओवर हियर दैट इज ओम्स लॉ इज ओबेड. Ohm's law is obeyed. क्लियर है? ठीक है. अब हम आते हैं दूसरे टाइप के कंडक्टर्स के ऊपर. We have other conductors as well, which are named as non-ohmic conductor. So now I'm going to write about non-ohmic conductors. Conductor सर हेलो हेलो. हेलो हादी ये ब्रो क्या हुआ आ है? जाएंगे सर, एक आप साहब क्यों बोल रहे हो? एक साहब होस्ट पर हादी ओ भाई भाई, क्या चलो हाल है? पढ़ाओ. एक साथ. अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? और आधी काम बोल लगा, तेरी बड़ी मेहरबानी कसम से यार मुझे कौन तेरे सा बड़ा बोलते चढ़ा. हैं? बहुत ज्यादा बोलता है. बहुत ज्यादा बोल. यार पता नहीं सर कोई और बात कर रहे होते हैं, तू पानी किधर ले जाता है? हाँ, अहमद तो तू अहमद भाई आपको चाय क्यों चाहिए? तू बीच में गांधी के दादा बन जाता है. चुप कर. अहमद रोज भाई का चाय तो शुरू बंद करो. मेरी भंग की और स्मेल वहां दाऊद? तक आ रही है, मुझे नींद आ रही है बहुत यार. इस बैग हाँ यार तो बिहेव किसने योरसेल्फ, कहा सस्ते नशे कर? हाँ, चुप कर, माइंड सर आ योर गए. लैंग्वेज, पंगी माइंड योर इंसान. लैंग्वेज प्लीज.
Jeeves. I'm here, Jeeves. guys. Mind your language, please. हद हो गई बेटे, आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने प्यार से पढ़ रहे होते हैं. I'm so happy कि I've got such a nice kids with me. ठीक है? Thanks, sir. Thanks. Thank you guys. I'm so glad. Love you guys. अब देखें, अपने माइक्स को प्लीज म्यूट कर दें ताकि आप लोगों को ये समझ में आए सारी चीजें. Thank you. So I was talking about non-ohmic conductors. Non-ohmic conductors की बात करते हैं. Conductor in which current flowing through it is not directly proportional to the potential difference across it. Now we have basically in this, when we talk about non-ohmic conductor, we are actually saying that Ohm's law is not obeyed. तो हम यहाँ पे बात करते हैं Ohm's law. That is Ohm's law is not obeyed. बेटे प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कर दें मेरे बच्चों. आप लोगों के साथ शेयरिंग हो रही है? नहीं हो रही है. हो जाती है. ये ले बेटे, हो गई बेटे. टेंशन ही लेनी, जिंदगी में टेंशन ही लेते रहते हैं और वो चीजें लाइफ के अंदर. अच्छा, so it means that is Ohm's law is not obeyed. So when we are talking about this, we are actually talking about that Ohm's law obey नहीं हो रहा. लेकिन ये सर इस तरह के कंडक्टर की कोई एग्जांपल दे दे. बेटे मैं, आप रुक जाओ, हौसला रखें, आपको कोई चीज छोड़ के नहीं मैं चलूंगा. जी अब्दुल्ला अकील, सॉरी हारून, आप बताएं. हारून. कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, गलती से हो गया. गलती से हो गया ये कब? अब्दुल्ला अकील ने तो लगता है टी ब्रेक पे गया हुआ है. नहीं सर इधर ही. ये आप लोगों के सामने कुछ नए आइकन्स भी आ रहे होंगे. यस, नो, गो स्लोअर, गो फास्टर, मोर, क्लियर ऑल, हैं? ये आप लोगों के पास भी आ रहे होंगे. तो अगर आप लोगों को कोई हो तो मुझे इनसे मत बताइएगा, डायरेक्टली बता दीजिएगा. अच्छा, अब एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बताने लगा हूं कि हमारे पास वो कौन से ऐसे कंडक्टर्स हैं जो कि हम कहलाते हैं कि दे आर नॉन ohmic कंडक्टर्स. इससे पहले कि मैं उसके ऊपर बात करूं, मैं आपके सामने ये सारा एक ही स्पेस में ले आया नॉन ohmic कंडक्टर वाली बात का. अब हम इसकी एग्जांपल्स आज हमारे एक प्यारे से बच्चे ने पूछा है कि सर इसकी कोई एग्जांपल्स तो दे दें. तो लेट्स discuss the examples over here. Examples of non-ohmic conductor. Number one, filament. In glass bulb. Number two, thermistor. Number three, LDR. Means light dependent resistor. Its short form, official short form is LDR. You can use this word. ठीक है, इसकी short form use कर सकते हैं. And lastly, जो आपको आपके लेवल पे बहुत rarely सुनने को मिलेगा, that is strain gauge. अब ये ऐसे रेजिस्टर्स हैं जिनके टेम्परेचर चेंज करने से, लाइट चेंज करने से या प्रेशर सेंसिटिविटी चेंज करने से इनके रेजिस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं. इसका मतलब ये है कि इनके अंदर ऑटोमेटिकली अदर फीचर्स अवेलेबल हैं
फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल कंडीशंस है जो वेरी करती हैं और उसकी बेसिस पर ये बदल जाते हैं। अब ये रेजिस्टर्स आप लोगों के सामने मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखें क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ग्राफ्स डिस्कस करने वाला हूं। बट अभी के लिए आपको थोड़ी सी बात का जो पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को ये बेसिकली 2 असाइनमेंट्स जो दी थी, I'm gonna talk about these 2 assignments. मैं पहले से आपको बता रहा हूं that this is one question जो मैंने आप लोगों को दिया और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। It says that figure 8.1 shows an electrical conductor. Figure 8.1 shows an electrical conductor. The switch S is open. जब हम कहते हैं ना कि स्विच ओपन है, इसका मतलब क्या होता है? मैं पहले से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। स्विच ओपन मींस दैट स्विच इज ऑफ। जब हम नॉर्मल स्टेट में बोलते हैं ना कि स्विच ऑफ है, तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं दैट द स्विच इज ओपन। Whereas if the term is used, the switch is closed, तो इसका मतलब होता है that switch is on। तो मैं आपको पहले इस पॉइंट के लिए लिख के दे रहा हूं यहां पर, it means that switch is off. Circuit is switched off. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए आप लोग। सर ये जो आप लिखते हैं सर ये अपलोड ही कर दे सर, याद करने पड़ते थे। क्या चीज अपलोड कर दें बेटे? ये ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे है, अपलोड हुआ हुआ। स्टेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर के हमारे पास ये जो कैसे आप ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखते सर, ये अपलोड कर दो सर, याद करने में आसानी। ओके बेटे, वो भी अपलोड कर दूंगा, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यू कैन गेट दिस, यू कैन कैप्चर द स्क्रीन इमेज एज वेल। अच्छा, अब वो कहता है कि आपने वैल्यू स्टेट करनी है अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। अब आप लोगों ने थोड़े बहुत रेजिस्टर्स को स्टडी किया हुआ है, तो अगर हम आपसे मैं कह देता हूं कि इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है दैट यू सिंपली ऐड ऑल द रेजिस्टर्स। तो अगर मैं इसके रेजिस्टेंस निकालता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 + 2 मींस 8 ohms। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर, लेकिन ये तब पूछा गया आपसे जब हमारे पास स्विच ओपन है। तो मुझे बताएं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। आपके ख्याल में क्या वैल्यू होनी चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस की अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर? 0 0 बाकी सब क्या कहते हैं? 0 0 0 0 0 0। और किसी के पास कोई और? अच्छा, 0 क्यों है ये बताएं। ये आपने सिर्फ ये सोच के बताया। अच्छा, एक और मैं बात पूछता हूँ। लेट्स से मैं कह देता हूँ स्विच ओपन है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? व्हेन स्विच इज ओपन, what is the effective resistance of the circuit? 8 जी बेटे, 8. When switch is open, what is the effective resistance of the circuit? अब मैं ये पॉइंट आपको मार्क करके दे रहा हूं, आइंदा कभी इस चीज पर कंफ्यूजन मत कीजिएगा। बेटे, अगर आपके पास एक फ्लाईओवर है जिससे आपने पास करना है और वो फ्लाईओवर जो है बीच में से टूटा हुआ है, क्या आप कभी दूसरी तरफ जा सकेंगे फ्लाईओवर के? क्या आप दूसरी तरफ जा सकेंगे उस फ्लाईओवर के? कभी भी नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब है कि आपके लिए उस फ्लाईओवर का रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट हो गया। तो इट मींस इन्फिनिट रेजिस्टेंस। ये बात पूछी जाती है पेपर में कि इफ स्विच इज ओपन व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो आप बोलेंगे इन्फिनिट रेजिस्टेंस। इन दिस केस व्हेन स्विच इज ओपन, सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आता है, याद रखना है, वो इन्फिनिट रेजिस्टेंस होता है। तो ये मैंने बेसिकली इस पॉइंट के लिए लिख के दिया है। कभी भी ये मत कहिएगा कि रेजिस्टेंस 0 है या रेजिस्टेंस फुली जो आपको नजर आ रहा है वो।
ठीक है। अच्छा, आपने पहला पॉइंट तो ठीक बताया कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। उसका लॉजिक मैं अब आपको दे देता हूं। उसका लॉजिक ये है कि हमारे पास यहां से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो कोई एनर्जी जो है, कोई वर्क डन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इन्फिनिट रेजिस्टेंस है। तो जब इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि रिजल्ट ये आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहते हैं स्टेट द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई है 8 ohms। कैलकुलेट द करंट इन द एमीटर, स्टेट क्लियरली द फॉर्मूला। अब एमीटर जो है वो दोनों के साथ लगा हुआ है, तो अब हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए? V is equal to IR, so I is equal to V by R। ठीक है, अब हमारे पास V की वैल्यू कितनी दी हुई है इसने इस सर्किट के अंदर? What is the value of V? 16. And what is the value of R जो भी हमने निकाली है? 8. So that means the current is 2 amperes। अब आपसे कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ohm रेजिस्टर। तो बेटे सीरीज में अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास ये सर्किट जो है ये स्विच क्लोज हो, सीरीज में व्हाटएवर, एक मिनट बेटे, एक मिनट दे दे, आपकी बात सुनता हूं। जो करंट इसमें से फ्लो करेगा वही करंट इस पार्ट में से भी फ्लो करने वाला है, ठीक है। और वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इट इज 2 amperes। तो मुझे बताएं कि अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 6 ohm वाले के अक्रॉस, व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना अप्लाई ओम्स लॉ फॉर्मूला, V is equal to IR। I मुझे पता है कि उसके अंदर से 2 चल रहा है और R उसका है 6। सो हमारे पास V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 volts। अब देखिए, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि इधर 16 volts है, अभी मैंने जो आंसर निकाला है इसके क्रॉस से 12 volts है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohms रेजिस्टर? 4 volts, क्योंकि टोटल हमेशा वही होना चाहिए जो हमने सप्लाई किया। तो आपको ये समझ में आया कि किस तरह से हमने किया क्वेश्चन? ये मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मेशन दिखाई है। वी हैव अदर क्वेश्चंस एज वेल ओवर हियर, लेकिन अब एक क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करना है एज योर असाइनमेंट। इसके अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इस पार्ट में जब हमारे पास पैरेलल में सर्किट्स होते हैं, ये मैं सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा हूं, मैंने इसके ऊपर अभी आपसे पैरेलल और सीरीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है, लेकिन मैं सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए असाइनमेंट दिया एज अ फूड फॉर थॉट। ये देखें, पैरेलल में एक पॉइंट याद रखिएगा, जो पॉइंट मैं अभी आपको समझाने लगा। यहां पर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर नेगेटिव है। इस साइड पर हमारे पास +12 वोल्ट्स का सप्लाई है और इस साइड पर 0 वोल्ट्स का। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब ये वाला टर्मिनल क्योंकि +12 से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा +12, और ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट हो रहा है 0 से, तो इसका मतलब है इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट्स। अब अगर इसी वक्त आप देखें, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, दोनों सेल्स किससे कनेक्ट हो रहे हैं? हमारे पास इस पॉइंट से अगर हम नोटिस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 12 वोल्ट इससे ही कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं अब आपसे कहूं व्हाट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पार्ट, तो आप क्या कहेंगे? एक वोल्ट मीटर लगा लेता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटे? इस पे 12 - 0, दैट मींस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से हमारे पास इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फिर से वैसे ही निकालेंगे। एक तरफ +12 है, दूसरी तरफ 0 है, तो ये भी 12 वोल्ट्स है। आप लोग हमेशा सुनते थे ना कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम होते हैं। ये बात सुनी नहीं है ना आप लोगों ने कुछ हद तक? मैंने अभी ये बात कल करवानी है, मतलब नेक्स्ट क्लास में, बट मैं अभी आपको वैसे ही सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। तो ये अब आपके सामने आज लॉजिक आ गया कि ये दोनों पैरेलल में थे, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल्स पे दोनों साइड से कनेक्टेड हैं, इसलिए 2 और 4 वोल्ट्स के अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस भी 12 है, और इसी तरह ये 6 और 3 ओम वाले के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 है। एट द सेम टाइम याद रखिएगा कि ये दोनों भी आपस में भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 6 और 3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे 12 वोल्ट ही है। और जस्ट एज ए रिव्यू मैं आपको ये बात बता रहा हूं क्वेश्चन के लिए कि आपके पास जब भी पैरेलल में रेजिस्टर्स होते हैं तो आपने इस तरह से उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो मैं कल देखूंगा कि आप लोगों को जो 2 क्वेश्चंस मैंने दिए असाइनमेंट में, आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं दोबारा से खुद से, और मुझे सबमिट करना है आज रात 8 बजे तक, ठीक है? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। यस सर। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। सर जी जी अल्लाह हाफिज। जी अहमद। ये आमिर मुस्तफा ने सर वो